علیہ وسلم پر جن کی خاطر یہ دنیا تخلیق کی گئی۔ ناظرین، زمان ٹی وی کے نشریات سید تصدق حسین کیلگری کینیڈا کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پروگرام کی اسپیشلٹی ہے، آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں دختر پاکستان جناب نصرت عباسی صاحبہ۔ نہ صرف یہ ممبر آف پروونشل اسمبلی 2008 سے ہیں، چونکہ اکثر اقتدار کے ایوانوں میں جب لوگ جاتے ہیں تو عوامی حقوق اور عوامی مسائل کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں، لیکن اس دختر پاکستان کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جس نے ہمیشہ پاکستانی عوام کو، نہ صرف سندھ اسمبلی بلکہ پورے پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو ان کے حقوق دلانے کی جدوجہد ہمیشہ جاری و ساری رکھی۔ آج میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں ان کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم نصرت صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام تصدق بھائی، تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہے نا، اس کے علاوہ جو زما انٹرنیشنل کے روئے رواں، زما ٹی وی کے روئے رواں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں سینئر صحافی خورشید الزمان صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو بھی ویلکم کروں گا میں۔ جی وعلیکم السلام شاہ صاحب، آپ کو بھی اور محترمہ کو بھی میری طرف سے السلام علیکم، اور ناظرین کو بھی وعلیکم السلام۔ جیسا ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ اسمبلی کے فلور پر جو محترمہ نصرت عباسی صاحبہ کی جو سپیچ تھی، اس نے پوری دنیا کے اندر پاکستانی ڈائسپورا اور کشمیری ڈائسپورا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر ایک بندہ اس وقت دل میں سکون قلبی اس لیے محسوس کر رہا ہے کہ آج بھی پاکستان کے اندر اس گھسے پیٹے معاشرے کے اندر انسانی حقوق کو، ان کی آواز کو بھاری آواز بنانے والے لوگ زندہ ہیں، اور ہم فخر سے یہ کہتے ہیں کہ نصرت عباسی ان میں سے ایک ہیں۔ میں چاہوں گا کہ میرے جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ نصرت عباسی صاحبہ کا فلور پر ہونے والی وہ سپیچ اگر پلے کریں تو اس کے بعد میں ان کے پاس آؤں گا سوال کی طرف۔ میری جس دن قبر میں ہوگی مار دو، جس دن گولی مارو گے جو میری دن قبر میں ہوگا، رات ہوگی میں چلی جاؤں گی، سچ بولوں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی، جو چیلنج کرتی ہوں۔ میرے پاس پروف ہے، چھوٹی سی میں دکھا رہی ہوں سب کو، یہ وہاں کا اسکرین شاٹ ہے جس پر میری اور میری ماں کو گالیاں دی گئی ہیں۔ یہ پروف انہوں نے دیے، جن لوگوں کو آپ نے سوشل میڈیا پر میرے لیے کہا، یہ انہوں نے دیے۔ جن بہنوں نے مجھے گالیاں دی، یہ بہنیں جاتی ہیں باہر ملکوں میں، کچھ یہاں ہیں، کچھ نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں، سن رہی ہیں مجھے۔ میرے پاس سارے پروف پڑے، پیے میں دوں گی سر آپ کو، آپ پڑھیے گا۔ ان خواتین کو آج نصرت عباسی پوچھتی ہے تمہیں شرم نہیں آئی اس وقت؟ یہ کند کوٹ کی کچرے کے ڈھیر پر کند کوٹ کی میری ماں بہن اپنے بچے کو جنم دے رہی ہے کیونکہ سرکاری اسپتال بند تھا اور اس کا بچہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا۔ تو کیا تم جو بچے پیدا کرتی ہو، میں جو بچہ پیدا کر چکی، جو درد ہم نے سہا، اس نے وہ درد سہا یا نہیں؟ یہ وہ ماں نہیں ہے؟ جواب دو، جواب دینا پڑے گا تم کو۔ لکھو کاؤنٹر کرنے والی عورتوں جو میری تقریر کے بعد مجھے کاؤنٹر کرو گی۔ اور آپ کی پارٹی کی کئی بیگمات باہر جاتی ہیں اپنے بچے پیدا کرنے صرف وہاں کی نیشنلٹی کے لیے۔ یہ وہ عورت ہے کند کوٹ کی، اور اس کا دامن تمہیں دامن بھی پکڑے گا۔ کھڑی ہو کر اپنے آقاؤں کے لیے تقریریں کرنے والی، خدا کے خوف سے ڈرو۔ اور سر یہ وہ لوگ ہیں، مرد عورت کا پردہ دے دیا جاتا ہے جب وہ بچہ جنم دیتی ہے۔ یہ مرد دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت کچرے کے ڈھیر پر اپنے بچے کو جنم دے رہی ہے۔ یہ تماشا ہے سندھ کی غریب عوام کا۔ جب بچہ جنم ہو گیا اور مر گیا تو گدھے گاڑے پر لے جائے گا۔ ٹھٹھے اور سجاول کی ایمبولینس کے لیے آپ لوگوں نے 1 ارب رکھا ہوا ہے 22 ایمبولینس کے لیے۔ کہاں گئی وہ ایمبولینس؟ اس میری ماں بہن کے لیے نہیں تھی۔ سر دیکھیں ادھر ایک نظر پلیز، خدا کا واسطہ ہے، آپ بھی اولاد والے، ایک نظر دیکھیں سر۔ یہ بچہ یہ زندہ، اور یہ اس بچے کی مرنے والی اس کی لاش، اس بچے کو زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کے بعد اس بچے کی یہ شکل ہو گئی ہے۔ او مجھا رب، او لاکھ کو ماں کے ہے سین نہ دیکھا تو انہیں جو بچڑو ہی ملے انہیں کے زیادتی پر وہاں سے کہتی ہیں دوسرے صوبوں میں بھی تو زیادتی ہوتی ہے۔ یہ آپ آرگیومنٹ دے رہی ہیں؟ ارے دوسرے صوبوں میں ہوتی ہے تو ان پر بھی لعنت، لیکن اگر سندھ میں ہوگی تو میں اپنے چیف منسٹر سے پوچھوں گی، کس سے پوچھوں؟ یہ 8-10 بچے ڈوب گئے تھے۔ یہ کہاں ڈوبے تھے؟ جھرک میں۔ جھرک کے یہاں نمائندے بیٹھے ہیں، اللہ کی عدالت میں ضرور یہ بچے آپ کا دامن پکڑیں گے۔ یہ بچے جس گاڑی میں، یہ گاڑی مچھلیاں کا گند اٹھانے والی گاڑی ہے، مچھلیوں کا گند۔ اگر نصرت عباسی خود
खुदा ना करे उसका बच्चा या आपका बच्चा इस तरह गंदगी नालियों में उठाने वाली गाड़ियों में जाए तो खुदा की कसम हमारा कलेजा फट जाए। लेकिन नहीं, 12 सालों में सिंध की अवाम का ये जुल्म है कि आप कराची से सिंध सेक्रेटेरिएट पे जितनी करप्शन होती है, मुझसे पूछो, नुसरत के पास कागजात पड़े। ये औरत सर आज इसकी वीडियो चली है, रो रही है। सर यहाँ पर सिस्टम चलते हैं, क्या सिस्टम चलते हैं? कनासरो सिस्टम, कुदवाई सिस्टम, ओमनी सिस्टम, क्या बात करते हो आप? जी नाज़रीन, ये वो भारी आवाज़, ये वो अजीम मर्तबत दफ्तर पाकिस्तान की आवाज़ आप सब लोगों ने सुनी। इस वक्त इंटरनेशनली 7 बर्रे आज़मों में आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और आपने ये आवाज़ सुनी। ये आवाज़ थी मोहतरमा नुसरत अब्बासी साहिबा की, जो इस वक्त मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं सिंध 2008 से और इस वक्त हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। पाकिस्तान में शहरी हुकूक और रियासती जिम्मेदारियाँ, आपके सामने इस वक्त जो एक दर्दनाक वाक़या मोटरवे लाहौर के ऊपर पेश आया, उस वाक़े के बाद जो है इस वक्त इस तरह लग रहा है कि ख़वातीन और बच्चे और पाकिस्तान के अंदर इज़्ज़तें बिल्कुल गैर महफूज हैं। लोगों को असला उठाकर जो है ना अपनी इज़्ज़तें महफूज करनी पड़ेंगी। हुकूमत वक्त जो है वो रियासती जिम्मेदारियां भूल चुकी है। क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच तसद्दुक साहब, आपने मेरी वीडियो क्लिप चलाई और यकीन माने कि इस वक्त दोबारा देखकर फिर मैं उसी माहौल में चली गई, क्योंकि उस वक्त पता नहीं होता है, जब जज्बात हो रहे हैं और इस तरह के वाकयात होते हैं तो यकीन माने अपना आप कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, क्योंकि हम सब इसी माशरे में रह रहे हैं, हमारी भी औलादें हैं। हम एक माँ बाप के लिए औलाद कितनी कितनी अहमियत रखती है, ये आप हम सब औलाद वाले को पता है। तो ये सारे चीजें हैं और अब ये वाकया हो गया। देखें, कल नहीं परसों मैं गई थी, छोटी बच्ची मरवा यहीं कराची में ईसा नगरी में, उस बच्ची को भी ज्यादती का निशाना बनाकर उसको जला दिया गया और फिर दूसरे दिन एकदम से ये दूसरी न्यूज चल गई कि ये मोटरवे पर एक खातून को, अब यकीन माने मैं ये लफ्ज अदा कर रही हूँ ना तसद्दुक साहब, तो मुझे ये हो रहा है कि तसव्वुर में आ जाती है वो चीज कि वो मेरे खुदाया, मेरे रब, क्या कयामत, अब इसके बाद और क्या क़यामत आनी है कि बच्चों के सामने उसकी माँ को ज्यादती का निशाना बनाए। अब उस माँ और उस बच्चों की आगे जिंदगियों में ना माँ बच्चों के सामने नजरें मिला पाए, ना बच्चे माँ से नजरें मिला पाए। ये हमारे माशरा है, ये हमारा मुल्क है। यकीन माने आज मुझे भी किसी ने कहा कि बहन तुम कच्चे के इलाकों में अकेली चली जाती हो, बहन तुम दूर दूर इलाकों में अकेली गाड़ी में जाती हो, ऐसे इलाकों में खुदा का वास्ता मत जाना। अब ये मुझे आज किसी ने कहा, बहन खुदा का वास्ता मत जाना, कि अब यूं होने लगा है, अब यूं हमारी इज्जतों को पामाल किया जाने लगा है। तो तसद्दुक भाई ये है, और इस तरह के वाकयात हो रहे हैं हमारे मुल्क में। कानून बहुत है, मैं जिस असेंबली से ताल्लुक रखती हूँ सिंध असेंबली, वहां इतनी लेजिस्लेशन हुई है कि यहाँ पर स्पीकर और दूसरे मेंबर्स खड़े होकर फखरिया कहते हैं हम उस सूबे से हैं जहाँ सबसे ज्यादा कानून साजी हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या सबसे ज्यादा कानून तो बना लिए गए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है कि आज भी बच्चियां रेप हो, तशद्दुद करके मार दी जाए, और आज भी अगर इस तरह मोटरवे पर घसीट कर उसको झाड़ियों में ले जाकर उसके बच्चों के सामने रेप कर दिया जाए, और वहां के सीसीपीओ या वहां के ओहदेदारान जो हमारी इज्जतों के मुहाफिज हैं, जिनको हमारी इज्जतों, हमारे जानो माल की हिफाजत के लिए उनको वो मराहत मिलती है, वो पैसा मिलता है जिसका जो हम टैक्स देते हैं उसकी सूरत में, मुझे बताएं वो अगर इस तरह का बयान दे तो फिर हम कहां जाएं? हम किसी और मुल्क के किसी वजीर को या किसी को बुला लें, वजीर आजम के, आओ खुदा का वास्ता है हमारी इज्जतों की हिफाजत करो, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो हमारी इज्जतों की हिफाजत के बजाय हमें इस तरह की बातें कहते हैं जिसको सुनकर हमारा दिल चाहता है कि जमीन फटे और हम इसके अंदर चले जाए। इससे ज्यादा और हम क्या कह सकते हैं? आपके जज्बात, आपकी आवाज़ जो है वो यकीनन इक़्तिदार के ऐवानों तक जाती है। और मैं सुन रहा था और मैं एक चीज़ यहाँ नोट कर रहा था, मैं उस सवाल को नेक्स्ट जो है ना उस पर ज़रूर आपके सामने पेश करूँगा कि जब स्पीकर साहब को मुखातिब करके आप कह रही हैं और इंसानी हुकूक
की दुहाई दे रही हैं, बच्चा कूड़े पे पैदा हुआ, ऑक्सीजन नहीं है, वो सारी बातें आप कर रही हैं जो तमाम बजट से रिलेटेड चीजें हैं, और वो ये कह रहे हैं जी आपने बजट से रिलेटेड कोई बात नहीं की। ये उनकी बेरसी का आलम था इक़्तिदार के ऐवानों का। इससे पहले कि मैं दूसरे सवाल की तरफ जाऊं, मेरे सीनियर सहाफ़ी 40 साल तजर्बा वाशिंगटन में इस वक्त बैठे हैं, खुर्शीदुज़्ज़मा साहब। खुर्शीदुज़्ज़मा साहब, पहला टेक आपसे लूंगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर शहरी जो हुकूक हैं, उन हुकूक की जो है ना रियासती जिम्मेदारियां किस नज़र से आप देख रहे हैं पूरी हो रही हैं, और आवाज़ बन रही हैं? नुसरत साहिबा जैसी खातून अपने आप को चैलेंज करके, अपनी मौत को हाथ पे रख के, इन्होंने खुद वहाँ जो है ना फ्लोर पे भी ये कहा कि मुझे पता है मुझे मार दिया जाएगा, मुझे मार सकते हो आप लोग, और मेरी ज़िंदगी को भी ख़तरा लाक है, और यकीनन ख़तरा लाक है। जहाँ पे आम शहरी महफूज नहीं है, तो नुसरत साहिबा तो एक सेलिब्रिटी होकर जो है ना वो कैसे महफूज है, और एक आम शहरी वहाँ कैसे महफूज है? क्या कहेंगे खुर्शीदुज़्ज़मा साहब आप इसके हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब आपको, मोहतरमा नुसरत अब्बासी साहिबा को, आपके नाज़रीन को मेरा बहुत बहुत सलाम हो। मोहतरमा नुसरत की जो आपने वीडियो चलाई और ख़ुद इन्होंने जो आपको बताया, ये हमारे वतन का एक वो जानदार आवाज़ है जी, जो आपको अक्सर पता है कि लोग ऐवानों में जाते हैं तो वो आवाम को भूल जाते हैं, मगर अवामी लीडर वो होता है जो ऐवान में पहुंच के भी उसकी सदा उस गरीब आदमी के ऊपर हो जिसकी वो आवाज़ बना था वोट लेते वक्त। तो वोट के तकद्दुस का अगर पाकिस्तान में जो मैंने सो फार एनालिसिस किया है आज तक, हमारी असेंबलियों में बहुत कम नुसरत अब्बासी हैं। तो अल्लाह करे जी कि हमारे जितने भी 4 सूबे हैं और जो आज़ाद कश्मीर का खिता है वहाँ भी अल्लाह को नुसरत अब्बासी पैदा करे, और नुसरत अब्बासी साहिबा की जो आवाज़, जो सदा, जो पकार सिंध असम्बली में आप सुनते हैं, तो ये सिंध के लिए बात करती हैं। यकीनन इनका हल्का है, मगर इनको मैं सिंध तक महदूद नहीं करता, क्योंकि इनके ख्यालात, इनका काम और इनका जो मिशन है इंसानी हकूक के नाते, वो पूरी रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी ये कर रही होती है। ऐसा ही। और जिस बहादुरी से मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी हिफाजत का जिम्मेदार है, वो खालिक कायनात, मालिक कायनात सब का मुहाफ़िज़ है, वही इनकी भी हिफाजत करेगा। मगर मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि नुसरत अब्बासी जैसी जानदार आवाज़ लोगों के कहने पे ये कच्चे के इलाके में ना जाएं या फला जगह पे ना जाएं। इन्होंने जाना है, अगर इनकी मौत इस तरह लिखी हुई है अल्लाह के यहाँ, उसको कोई भी पाकिस्तान की एजेंसी नहीं रोक सकेगी। मिशन इनका जो है वो है खिदमत इंसानी, इंसानियत के लिए जो ये काम कर रही हैं, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। यहाँ पे मैं आपको रोक कर एक सवाल करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जिस माशरे में आप और मैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है वो आंखें, दिल, नजरें और हाथ बिछाए जाते हैं कि वो उस पे चल के जो है ना वो इंसानी हुकूक के लिए काम करें। आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ अपनी कैपेसिटी में। नुसरत अब्बासी साहबा क्यों इतने चैलेंजेस को सामना उनको करना पड़ रहा है? क्यों वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जबकि वो काम जो कर रही है वो इंसानी हुकूक की बका के लिए कर रही है? ये शाह साहब, फरसूदा निज़ाम के अंदर जब आप कुछ तब्दीली लाएंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि घिसे पिटा निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त राइज है। आप आईने पाकिस्तान को उठा के देख लें कि 73 बरस में उनको 73 आदमी नहीं मिल पाए जो उस आइन को दुरुस्त कर सकें, जो उस आइन को अवामी मांगों का तर्जमान आइन बना सकें। तो अभी जब हमारी लीडरशिप जो नई क़यादत आ रही है सामने और वो नया विजन लेके आ रहे हैं, आइन और कानून जो है शाह जी वो बदला करते हैं वक्त के मुताबिक। ठीक है, आपकी जरूरत के जब अवामी जरूरत बढ़ती है तो आलात और वक्त को देखकर आइन में तब्दीलियां लाई जाती हैं। जरूरत इस अमर की है कि असेंबली के अंदर ये जो बड़े बड़े फन खान बैठे हुए हैं, इन फन खानों को फन खानी दिखानी चाहिए आइन और कानून की खिदमत करके, अपने आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करके। तो ये जब नुसरत अब्बासी साहिबा जैसी आवाज उठेगी तो इसके ऊपर देखें, जब इनके क्लिप में इन्होंने कहा कि जो औरतें मुझे काउंटर करेंगी वो सुन लें। अब मुझे ये बात बताएं, इनकी एक एक लफ्ज से दर्द इंसानियत उछल रहा था इनकी तकरीर के दौरान। तो ऐसी पुकार को
आगे लाने में थोड़ी रुकावट तो होगी, मगर सियासत और खिदमत जो है वो जोधे मसलसल का नाम है, उससे हमने पीछे नहीं हटना, उसके लिए हमारी तगदो जारी रहेगी और यकीनन हम वो तब्दीली लाएंगे जिसकी ज़रूरत आवाम को है और अवामी तकाज़ों के मुताबिक जो हमारी आईनी कानूनी जिम्मेदारियां हैं वो मोहतरमा नुसरत अब्बासी जैसे लोग ही करेंगे और अल्लाह करे कि पूरे पाकिस्तान में इन जैसे जो है वो सियासी वर्कर सामने आए, अपने इलाके में लोगों की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दें। तो शाह साहब आपका मेरा ख्याल है वीडियो लिंक आप में कोई रुकावट आ गई है, तो जब तक शाह साहब का राब्ता हमारे साथ जुड़ता है तो मैं नाजरीन आपको वो क्लिप दिखाने लगा हूँ जो CCPO लाहौर ने इस वाक़े के बाद, जो वाक़ा परसों पेश आया, उसके बाद उन्होंने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया। पहले ये आप क्लिप सुन लें, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने क्या कहा ये आप सुने सबसे पहले। मेरा यकीन है क्यों कि मैं सीधी बात करने वाला ऑफिसर हूँ। मैंने उन्हें कहा कि यार क्या हम अपनी बहन को, माँ को अकेले बच्चों के साथ जाने देते हैं? 12:30 बजे नहीं जाने देते, पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती, नंबर 1। अगला सवाल ये है कि वो अगर जाने भी सही किसी इमरजेंसी से, तो हम उसे कहते बेटा GT रोड से जाओ। ये बातें करने से मेरा मुराद उसको मोर्दे इल्जाम ठहराना नहीं है। ठीक हो, मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। अच्छा सर, ये विक्टिम जो है खातून, ये फ्रांस की नेशनल थी और ये मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाना चाहती थी, तो इस पे क्या है? उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है। उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। कि मैं ये उसी तरह का हमारा महफूज मुआशरा है और मुआशरे वहाँ पे सिर्फ लॉ से नहीं महफूज, वहाँ इखलाकी कदरों से महफूज है, रूल ऑफ लॉ की वजह से महफूज है, रिट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से महफूज है। इसलिए बच्चियां वहाँ जनाब ये CCPO शेख उमर साहब लाहौर प्रेस क्लब से जो है ना वो खिताब कर रहे थे और वो लग ये रहा है कि सियासतदान बात कर रहा है, प्रोफेशनल नहीं बात कर रहा। नुसरत अब्बासी साहब आपकी तरफ आऊंगा। बिल्कुल तसद्दुक साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनका अंदाज जो बात करने का था ना, ये किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी पुलिस सीनियर तरीन पुलिस ऑफिसर का नहीं था। हमारी भी जिंदगी सियासत में गुजर गई, हमने भी आसपास ये सारी चीजें देखी। अंदाज उनका इस तरह था कि मैं अभी अगर कहूँ कि किसी भी गांव के कोई वडेरा या कोई इस तरह का अंदाज था इनका, यकीन माने इस तरह का बात करने का अंदाज, जिसने हम सब खवातीन के दिलों पर एक तरह से छुरियां चला दी। छुरियां, यकीन माने पूरी। बल्कि हम खवातीन तो क्या, जितने भी मर्द हजरात हैं जो उस माइंडसेट से बाहर निकले, जो इस चीज को समझते हैं कि औरत की इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी आजादी, उसका तालीमी हिसाब से उसको जो देनी है इजाजतें, उन तमाम चीजों से हमारे पीछे भी तो आखिर मर्द ही है ना, बाप भी, शौहर भी, बेटा भी, ये तमाम वो है जो हमें इजाजतें देते हैं। और हम बाहर इस तरह सियासी तौर पर अगर निकलते हैं, और अगर कच्चे के इलाके में नुसरत सैयद अब्बासी अकेले जाती है, तो वो एतमाद है, वो अपने ऊपर ट्रस्ट है। तो ये चीजें उन तमाम खवातीन और मर्दों को बहुत बहुत ज्यादा हर्ट किया है। इसी वजह से आपने देखा कि जिस दिन से ये वाकया हुआ, सब ने पहले तो CCPO के लिए कहा कि इसको इस जगह से एक फौरी तौर पर हटाया जाए। इस तरह के ऑफिसर्स अगर ऐसे बयान देंगे मेरे भाई, तो फिर आगे जाकर हमारे माशरे पे क्या असरात होंगे, हमारी यूथ पे क्या असर पड़ेगा। खवातीन को जो थोड़ी बहुत अभी इजाजत है, आपको पता है गांव गोठों में, छोटे छोटे इलाकों में, UC लेवल पे जब मैं जाती हूँ, वहां पर तालीमी हिसाब से जब मैं देखती हूँ कि तालीम का मयार इतना वो है कि बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को उस स्कूल में नहीं भेजना जहां पर टीचर्स मर्द हैं और फीमेल्स नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें इन्हीं से कनेक्टेड है। हम आप अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं इसी वजह से कि इस तरह का माइंड सेट है, इस तरह की सोच है, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा तकलीफ आई। और उसके बाद उन्होंने उनको कई वफाकी हमारे वजीर या
हुकूमती लोगों ने जिसने भी सपोर्ट किया उनकी सोच को भी सलाम है कि उन्होंने उसके बयानिए को सपोर्ट किया, और जिसने कंडेम किया उसको हम सलाम कहते हैं कि वो सब पेश करते हैं कि वो समझते हैं इस चीज को। असल में चूंकि ये जो बयान CCPO का इससे पहले जो हुआ, वो पहले उन्होंने जो क्या कहा वो थोड़ा सा मैं इसकी जो है ना चाहता हूँ कि यहाँ पे वजाहत हो जाए, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें। इन्होंने पहले ये बयान दागा जी के उस खातून को क्या पड़ी थी कि रात के 12 बजे घर से निकली, उस खातून को क्या पड़ी थी जी, क्या पड़ी थी कि जो है ना उसने क्यों नहीं चेक किया कि उसकी गाड़ी में गैसोलीन है, पेट्रोल है। यानी ये वो यानी गूफ किस्म की बातें हैं, या माशरे के अंदर यानी आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये पता लगा सकते हैं कि ये बंदा जो है, ये जो ब्यूरोक्रेट है, ये जो पुलिस का मुखिया है, ये बगैर किसी सिफारिश के आगे नहीं आ सकता। इस बंदे को खुद ये नहीं पता कि इसने क्या बयान दागना है, क्या बयान देना है। पब्लिक इस वक्त भड़की हुई है, अवाम जो है, और स्पेशली खवातीन के हवाले से हम सब लोग, चूंकि हर एक इंसान, हर एक मर्द अगर ये सोचे कि वो एक बेटी एक माँ से जो है ना वो जन्म हुआ उसका, और बहन बेटी रिश्ते सारे यहाँ मौजूद हैं, रिस्पेक्टिव रिश्ते हैं, और जिस मजहब को हम फॉलो कर रहे हैं उस मजहब ने हमें ये रिश्ते जो है ना इनको रिस्पेक्ट करने के लिए कहा है। अब आप ये मुझे बताएं कि जनाब ये पहला बयान तो ये दागा, दूसरा ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जिसको हम कहते थे तब्दीली आने वाली है, तब्दीली का बड़ा राग था, बड़ा जो है ना लोग सोच रहे थे कि वो तब्दीली आने वाली है। आप चूंकि एक सीनियर जो है ना पॉलिटिशियन है और इंसानी हुकूक की अलमबरदार है, एक बड़ी वॉइस है। अभी मैं एक क्लिप पढ़ रहा था, कनाडा से हमारे एक जो है ना सरदार जाहिद खान साहब ने यहाँ आपके लिए कहा था कि जो डिप्रेस लोग हैं उनकी आप आवाज़ हैं, और आपकी आवाज़ को लोग जो है ना दिलों से जो है ना वो कबूल कर रहे हैं, डायस्पोरा इंटरनेशनली जो पूरी दुनिया के अंदर बसता है। सो ये जो असल तब्दीली जो है वो हम कब तक जो है अपनी नई नस्ल को दे सकते हैं, और उसके लिए हमने आगे आप जैसे लोगों के साथ मिलकर कैसे जदोजहद करनी होगी, और किस तरफ लेके जाना है इस मुल्क को, आज़ाद पाकिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर को भी। तसद्दुक साहब, हमारा जो माशरा है ना, हमारे यहाँ अलमिया ये है कि मैं जिस असेंबली में हूँ ना, ये और इसके बाद दूसरी असेंबलीज को भी आप देख लें, असेंबलीज में 15 दफा एक ही MPA को उधर की अवाम मुंतखब करके भेजती है। ठीक है। अब उस अवाम को सोचना है, खुदा का वास्ता है, जिसको आप लाखों वोट देकर भेजते हो, 15 बार वो इस असेंबली का मेंबर है या थी, तो वो क्या तुम्हारी हल्के की आवाज बना, तुम्हारे हल्के के दुख दर्द, तालीम, सेहत, जो भी वहां के मसाइल है उसके बारे में उसने 15 दफा 15 साल वो वहां का MPA रहा या MNA या सेनेटर जो भी, तो उसने आवाज उठाई। ये माइंडसेट है। वो जो असेंबली में बैठता है, यकीन माने तसद्दुक, जो असेंबली में बैठता है वही अपने इलाके में जिरगे करता है, और वो वहां जिरगे करके वहां की माँ बहनों बेटियों के फैसले करते, इसको इसके हवाले कर दो, इसको इसके हवाले कर दो, इसका कत्ल इसने किया है तो उसके एक्सचेंज में इसका रिश्ता इसको दे दो। ये असेंबलियों में बैठे हुए होते, और भेजने वाली हमारी अवाम है। और ये अवाम जिसको मैं सलाम पेश करती हूँ, खुदा का वास्ता है, सोच लिया करो, वोट देते वक्त सोचो। यहाँ पर ये माइंडसेट बन गया तसद्दुक के जो सियासतदान सबसे ज्यादा अमीर होगा, जो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, जिसके पास पीछे 8-8, 10-10 प्रोटोकॉल में खड़े होंगे, यूं करके गने पीछे अवाम की तरफ करके बैठे हुए होंगे, जो इनके सिक्योरिटी गार्ड, ये हमारा माई बाप है। इसके पीछे हाथ बांध के भागना है, नंगे पैर, जिस्म पे कपड़े न हो लेके भागना है। अगर कोई सियासतदान मुझ जैसा, अगर छोटी सी गाड़ी में, आज मैं अपनी छोटी सी गाड़ी में जा रही थी तो मुझे ऐसे हैरानी से कह रहा था, MPA साहिबा इतनी छोटी सी गाड़ी से उतरी है। अरे भाई, इस सोच को निकालो। क्या MPA, MNA, सेनेटर अमीर तरीन, दौलतमंद, पैसे वाला होगा तो इसकी इज्जत होगी, वरना उसके अलावा नहीं, और उसी को आप अपना वही समझेंगे। तो इस चीज से निकलना है। अपने नुमाइंदों को सही नुमाइंदे मुंतखब करके भेजो, जो जैसे थे वैसे निकल कर बाहर है। अब हमारे यहाँ ये है, मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं करूंगी, हर असेंबली में है। कोई MPA, MNA पहली बार होता है तसद्दुक, उसके बाद आप उसको 2 साल के बाद उसके असासे उठाकर देख लिया करें, आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि हमें तो पता है जिन इलाकों से वो ताल्लुक रखते हैं उनका घर कैसा था, कितने गरीब थे, कितने असासे थे। 2 सालों के बाद
वो इतना अमीर हो जाता है कि वो लीड क्लास में चला गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बेंगलोर, दुबई में, लंदन में उसके प्लाजा। ओ भाई, इस चीज को अवाम क्यों नहीं देखती? हमारा इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देखता? हमारे अकाउंटेबिलिटी वाले इदारे क्यों नहीं देखते? ये अलमिया है। इस अलमिया को, इसको जब तक ठीक नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, ये निजाम ठीक नहीं होगा, ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, बार बार वही लोग आएंगे। माइंडसेट देखें, वो माइंडसेट, ये बैठा हुआ असेंबली में जिसने मुझे गाली दी थी असेंबली में, आपको याद होगा, जिसने मुझे अब्यूज किया था, वो असेंबली जहां लेजिस्लेशन होती है, जहां औरतों के, बच्चों के, मर्दों के हुकूक की बात होती है, उनके मसाइल की बात होती है, वहीं एक औरत खड़ी होकर अगर किसी इशू पर बात कर रही है तो सामने पार्टी का वजीर जो पीपल्स पार्टी से था, उसका माइंडसेट देखें कि वो मुझे अपनी औताक की औरत समझ रहा था, कि मैं उसकी औताक की कोई औरत हूं, जिसको कहा कि मैंने कहा इंग्लिश में पढ़ ले इसको सवाल को, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने ये कहा, मैंने जानबूझ के कहा, मुझे पता था कि वो जो वजीर बन के बैठा है उसको नहीं आता, ये उसने नहीं पढ़ सका, तो उसने मुझे अब्यूज करने के लिए कहा चलो चैम्बर में चलो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और जो अंदाज था, जो तरीका था, उसके बाद जो नाजेबाल जुमले कहे गए, उसके बाद अगर मैं स्टैंड ना लेती और मैंने अपने पैरों पे झुकाया उस वडेरे को, इन्होंने वो सारी स्क्रीन बंद कर दी थी, टीवी स्क्रीन बंद कर दी थी इस पार्टी ने, कि कहीं सारी दुनिया ना देखे कि एक वडेरा मेरे पैर पर हाथ रखकर मुझसे माफी मांग रहा है। ये माइंडसेट है, इसको खत्म करना है। मैंने स्टैंड उठाया कि कल मेरे बाद जो बेटियां आएंगी उनकी कोई इज्जत करे, इस तरह खड़े होकर असेंबलियों में उसकी बेइज्जती ना की जाए। फिर कौन अपनी बेटियों को सियासत में लाएगा या बाहर निकालेगा? बिल्कुल जबरदस्त। ये तरीका था। मैं समझता हूं कि जिस तरह आप एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आई, और रोल मॉडल ये है कि खदारा इस वक्त जो पाकिस्तान के लोग सुन रहे हैं, जो कमेंट्स दे रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, खदारा हकीकी तब्दीली के बारे में भी सोचिए। ये जो कल्चर आपने जो है ना इस वक्त वहां पे राइज किया हुआ है, और इसको आप जो है ना इसकी सुपरविजन आप कर रहे हैं, मरूसी सियासत की आप सुपरविजन कर रहे हैं। वहां पे आप लोग जो है ना, आप वोटर हैं जो वोट दे रहे हैं। सीनियर साहब, खुर्शीद जमां साहब से मैं टेक लूंगा कि आखिर इस माइंडसेट को बदलने के लिए हमें, जिस तरह नुसरत साहिबा ने कहा कि ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने होंगे, मेजर्स लेने होंगे, और इसके ऊपर जब हम आगे बढ़ेंगे तो नई नस्ल को कुछ हम दे के जाएंगे। हमारी अपनी उम्रें तो कुछ जो है ना वो इख्तितामी लम्हात की तरफ जा रही हैं, लेकिन जो नई नस्ल है, क्या वही घिसी पिटे निज़ाम का हिस्सा होगी? लेकिन बाज़ाहिर वो अपने आप को हाथ में गैजेट पकड़ के, एंड्रॉयड पकड़ के ये कहें कि वो मॉडरेट हो चुके हैं, मॉडर्न हो चुके हैं। किस तरह की मॉडर्निटी है खुर्शीद साहब? शाह साहब, जितनी खूबसूरती से अब्बासी साहिबा ने आपको तफसील बताई, औकात बताई कि मेंबर असेंबली कब आता है तो वो उसकी हालत क्या होती है, और जब वो जाता है तो उसका असासे किस तरह ऊपर चले जाते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि बड़ी गाड़ियों से तो तब्दीलियां नहीं आएगी भाई। दुनिया में कितने मुल्क हैं जिनके बादशाह हैं जो साइकिल पे आया करते थे, और जिस मुल्क में आप और मैं रह रहे हैं, कितनी बार आपने देखा है किसी सेनेटर या कांग्रेसमैन को? मैं तो यहाँ बात काटती थी, जस्टिन ट्रूडो जो है शॉपिंग मॉल के अंदर जब वो शेक हैंड करने हमसे मिलते हैं, आके मिलते हैं, तो वो दोबारा कहते हैं कि हाय, आई एम जस्टिन ट्रूडो। लाइक nobody give a damn, nobody cares, you know what's going on here। नहीं, यहाँ तो देखे ना, जब तक हमारे माशरे के अंदर वो इंसानी एहसास नहीं पैदा होगा ना, ये देखें, डिग्री और तालीम ये कुछ नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। उसके बाद उसकी जब इम्प्लीमेंट का टाइम आता है कि आपने यूटिलाइज कहाँ किया उस नॉलेज को, वो होता है आपके इल्म का अमली इस्तेमाल। तो ये जो चोर ठग वडेरे, जब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, लोगों के जहनों में, वोटर के जहन में हमें ये बात डालनी पड़ेगी कि आप इनको इसलिए वोट मत दें कि ये इस इलाके के बड़े वडेरे हैं और आप इनके जो है वर्कर हैं। ये तमीज हमें इससे बाहर आना होगा। सिंध जैसा बड़ा सूबा हो या पंजाब हो या KPK हो, हमें पूरे मुल्क में एक मुल्क गिर कैंपेन शुरू करनी पड़ेगी। इस रियासत के फरसुदा निज़ाम से जान छुड़ानी पड़ेगी। मगर ये होगा कैसे कि हमें असेंबलियों में जिम्मेदार लोग लेके आने पड़ेंगे। कल टीवी के ऊपर पंजाब का
वजीर आला क्या कह रहा था, अब कामरान उसको सवाल कुछ कर रहा है, वो उसको जवाब कुछ दे रहा है। तो इस तरह की जो माफूक ज़हन लोग हैं, ये आपके जब तक पॉलिटिशियन होंगे, आपको लीड करेंगे, तो मुल्क में खाक तब्दीली आएगी। इमरान खान साहब के सारे दावे इस वक्त बिल्कुल फेल हो चुके हैं। अमली तौर पे इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर सके। ये मैं बड़े बबांगे दौल कहता होता हूँ और मैं कहता रहूंगा कि वो कुछ नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था। ठीक है। और ये जब इन्होंने 18वीं तरमीम की, उसमें इन्होंने हुक्म छोड़ दिया जान बूझ के, और अब वो उस पर पछता रहे हैं। यानी जिस पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियन को ये पता नहीं है कि लेजिस्लेशन के लिए जो कमेटी बनेगी, वो कमेटी का काम क्या है, वो आधा काम आज करेंगे, आधा आप छोड़ देंगे। ये साजिशों का शिकार हो जाती हैं हमारी कानून साज कमेटियां। ये जब इनको कमांड एंड कंट्रोल कहीं और से किया जाएगा, तो फिर आप अपने मुल्क के अंदर निजाम की तब्दीली के कानून खुद नहीं बनाएंगे, बल्कि अगयार के छापा होगा उसके ऊपर। तो इससे बाहर निकला होगा ये नेशनल सोच। पहले पार्टियों के अंदर आएगी, सियासी पार्टियों की, फिर लीडरशिप के अंदर हम इसको लेके आएंगे, और फिर इसको कहीं फ्लोर के ऊपर जाके हम तब्दील कर सकते हैं और लोगों की फलाह बहबूद के लिए बात कर सकते हैं। यानी इस वक्त जो है ना, असेंबलियां तो हैं, मगर माजरत के साथ कि उन असेंबलियों का काम जायलाना काम है, उनकी कोई प्रोग्रेस आज तक मुझे कम से कम दिखाई नहीं दी। तो कहने वाली बात यह है कि लीडर वो जिसका काम नजर आए, जिसके दावे नहीं। देखिए, इसी वजह से आज हम प्रोग्राम में बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हमारे पास जो मेहमान हैं, जो हमारी गेस्ट हैं, वो दुख्तर पाकिस्तान हैं, और पूरा पाकिस्तानी डायस्पोरा और कश्मीरी डायस्पोरा इंटरनेशनली उनको सुनता है, उनसे इसलिए जो है ना मुअद्दद रखता है कि चूंकि उन्होंने हक और सच की आवाज़ को हमेशा जो है वो ऊपर किया। अगर आप चाहें तो मैं कमेंट्स भी शामिल कर सकता हूं, हमारे जो नाज़रीन के ट्वीट हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं नुसरत अब्बासी साहिबा से, तो उसके बाद मैं इस तरफ आऊँगा, कमेंट्स की तरफ आऊँगा। जो मेरा सवाल ये है कि शऊर की बेदारी, जो जहाँ तक मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी उसमें ये मुझे एक पहलू सामने आया कि शऊर की बेदारी अव्वलीन तरजीह है। शऊर बेदार होगा तो ये सिंध के अंदर पता चलेगा। हम खुदा न खास्ता जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिबा का सद बार एहतराम, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मर चुके हैं। शऊर बेदार होगा तो लोगों को पता चलेगा कि भुट्टो जिंदा है, नहीं जिंदा है, बल्कि कचरे के ढेर पे पैदा होने वाला बच्चा जो है वो उसके उस असेंबली का जिम्मेदार इंसान है जो बार बार उसी घिसे पिटे सिस्टम में दोबारा आ रहा है। कई जो है ना दहाइयों से वो आ रहा है, और आते आते उसने जो है लोग उसको साई मिट्टन हाथ जोड़ जोड़ के उसको वोट भी दे रहे हैं। सिंध से लेके पंजाब तक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही किस्सा है कि हमेशा जो है जिन लोगों की कुछ से है, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास दौलत है, जिन्होंने नाजायज जराए से पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। यानी एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताऊं कि एक ब्यूरोक्रेट के पास 4 करोड़ की जायदाद होती है, जिसकी तनख्वाह जो है वो कम से कम 2 लाख से ऊपर नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। कैसे ये सारा कुछ बन पा रहा है? और इस सिस्टम को इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि मैं हकीकी तब्दीली लाने के लिए आया हूँ। सो फार हम भी ये कहते हैं कि सो फार इमरान खान साहब नाकाम है। क्या कहेंगे आप? तसद्दुक देखिए, बाहर बैठकर भी आप लोग पाकिस्तान के हवाले से दिल दुख रहा है ना, यही बात है। यहाँ की नौजवान, यहाँ की यूथ जो है ना, वो इस कदर डिसहार्ट हो चुकी है कि वो अपने मुल्क में जिस तरह के हालात हैं वो यहाँ से भाग कर निकलने के उसमें होते हैं। हमारे बच्चे हमारे रिश्तेदारों के आसपास जिनसे पूछो, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ अपने हमारे मुल्क में क्या रखा है, यहाँ ये हालात है, ये हालात है। हर कोई अपने बच्चों को बाहर निकाले, क्योंकि जिस तरह का माहौल, जिस तरह का एटीट्यूड। आपने कितना अच्छी बात कही। आपको पता है, अगर आप चले जाएं शहरों में, ये है, कराची की हालत तो देख लें। इन बारिशों ने कराची की अंदर की सारा जो टूट फूट थी वो निकाल कर बाहर रख दिया। इन इदारों ने, इन लोगों ने जो खाया है, 1000 अरब से ज्यादा के तरक्याती बजट हो जहाँ तसद्दुक, उस सूबे का ये हाल हो कि उसका कैपिटल सिटी, उसकी ये हाल है कि पोश और पापोश दोनों एक हो गए। यानी गरीब हो या अमीर हो, सबके घरों का ये हाल है। आगे चलो,
तसद्दुक अगर हैदराबाद, नवाब शाह, लाड़काना, ये मैं अपने सूबे, क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, ऐसा हाल दूसरे सूबों का है, लेकिन यहाँ तो वो पार्टी है जो 12 साल से रूल कर रही, तो उनसे सवाल बनता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। यहाँ है तालीम का ये हाल है कि आप चले जाओ कच्चे गांव गोठों में, तो ये वहां के अपने लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते। मैंने जो कहा ना, जो 15-15 साल पहले बाप था, फिर उसका बेटा, अब उसका बेटा, यानी तीसरी नस्ल असेंबलीज में बैठी हुई है, तीसरी नस्ल। और अगर आप उसके हलके में जाकर देखेंगे कि भाई तीसरी नस्ल को तुमने असेंबली में भेज दिया, तो क्या उस तीसरी नस्ल के जो आया है उसके इलाके में अच्छे स्कूल हैं, तालीम का मयार अच्छा है, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर उन बेचारों को दिया? नहीं। पहला तो ये नजर आएगा कि आपको स्कूल ही नहीं नजर आएंगे। स्कूलों में अच्छा इतना खौफ और दहशत के कहेंगे ये साई ने अगर हमें कहा कि इस गधे को वोट देना है तो हम इस गधे को भी वोट दे देंगे। मतलब ये हालत है कि ये खौफ और दहशत, और स्कूल और तालीम को तो इस तरह वहां जानबूझ के करते हैं। मैं तो जाती हूँ इलेक्शन में गांव गोठ, मैंने पूरा सिंध के हर जिले के ताल के यूसी तक गई हूँ, मैं घरों में जाती हूँ, लोगों से पूछती हूँ, तो मुझे पता चलता है, मैं सर पकड़ कर उस पर बैठती हूँ, मेरे खुदाया मैं इनके जहन को कैसे बदलूं, मैं कैसे बदलूं? इनके पास इनके जहनों को इस तरह मफलूज कर दिया गया है। यानी अभी हमें बहुत सारी नस्लें छोटे छोटे बच्चों को इनके दिमागों में डाल दिया है। वो अगर जिए भुट्टो, भाई भुट्टो जिए कब तक जिए? अगर उन्होंने इतना बेहतर सिस्टम बनाया, लाड़काना को ले लूं मैं, अगर लाड़काना में जुल्फिकार अली भुट्टो, फिर बेनजीर भुट्टो, फिर बिलावल जरदारी और इनके इतने शहीद, इनका किबला काबा सियासी सब वही है, तो उसको आइडियल बना देते किसी बड़े अच्छे शहर का, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी सियासी शख्सियत वहां ये हाल है। मतलब आप जहनी तौर पर इतना मफलूज रखते हो वहां की आवाम को, अगर आवाज उठाएंगे तो उनके खिलाफ FIR, अगर कोई कुछ कहेगा तो उनकी थोड़ी बहुत जमीन पर कब्जा। चीखो, मेरे फोन पर तो सारा दिन बचते, अति खुदा का वास्ता हमें बचा लो, अति फला वडेरे ने हमारे खिलाफ फला, ये हालत है। फिर वो मजबूर हो जाते हैं, कुछ लोग तो मजबूर हो जाते हैं, कुछ लोग उनके डर खौफ से, कुछ दहशत से, कुछ पैसा, कहीं पैसा उस वडेरे को खरीद लिया, उस वडेरे ने सबके NIC अपने हाथ में रख लिए, साईं मैं आपको ही वोट कराऊंगा, ये पूरा गांव आपको वोट देगा। कैसे? जब तक तालीम वहां नहीं होगी, शऊर नहीं आएगा, नौजवान समझने नहीं लगेगा, नस्लें अभी एक दो और नस्लों को ये सब कुछ देखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं, इनके सोचों से, दिमागों से ये खत्म नहीं होगा कि भाई अपने लिए वो लीडर लाओ, वो नुमाइंदा लाओ जिसके आप गिरेबान को पकड़ सको, बोलो कि भाई तुम्हें वोट दिया था, तुम असेंबली में जाकर खरबपति हो गए, मैं तो वैसे का वैसा हूं, मेरा इलाका तो वैसे का वैसा, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पूछ, अच्छा इदारों का अपना बुरा असर, यहाँ अगर मैं एंटी करप्शन की बात करती हूँ, जिसको मैं अक्सर आंटी कहती हूँ, उस एंटी करप्शन के वजीर को जो लगाया, उसके पीछे इतने असासे और उसके नैब में केसेस चल रहे हैं, वाह भाई वाह। अच्छा, किसी की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर सूबे का एंटी करप्शन के इदारे में अगर मैं सवाल डालूं असेंबली में, जो मैंने डाला था, और मैंने कहा था कितने लोगों के केस आए, तो एक छोटे से क्लर्क का नाम आया, एक का, कि इसके खिलाफ केस हुआ था। है ये तो करप्ट तरीन सूबा है, तो एक। अच्छा, कितनी अच्छी बात कही यहाँ पर जमान साहब ने, कि यहाँ पर आपने भी कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो आपने तो किसी अच्छे ग्रेड की कहा होगा ना, जिसकी 2 लाख है, आप यहाँ सिंध सेक्रेटेरिएट में चले जाएं, वो जो पियोन है ना, पियोन चपरासी, जो अंदर फाइल भेजता है, तो आने वाले बेचारे साइलिन जो होते हैं, उनसे जब तक 1-2 लाख नहीं ले लेता, आगे फाइल नहीं पहुंचाता सेक्रेटरी तक, क्योंकि वो सारा आपस में हिस्सा फिर शाम को बांटते हैं। उसके बंगले हैं, उनके हसासे हैं, उनके ट्रक चल रहे होते हैं, कहीं कहीं उनकी फैक्ट्रियां। कहां जाएं? ये किस तरह चेंज आएगा? लोग मर रहे हैं, लोगों की इंक्रोच, कराची जैसे शहर में आए दिन ऐसी ऐसी इमारतें बन रही हैं, दूसरे दिन धड़ाम कराची के लोग मर गए, भाई इतने खानदान मर गए, चलो नोटिस ले लिया, चलो बस खत्म, बच्चे रेप हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कवानीन बनते चले जा रहे हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं जी, दूसरे दिन भूल जाते। कहां जाएं? किसको बोले? चीख चीख कर असेंबली में वहां से कितना भी चीखो चिल्लाओ, उधर ऐसे बैठे जैसे उनके कानों में कुछ, यानी ये हमारा सिस्टम है। तो ये शुक्र जिस मुखातिब करके एक बात करूंगा और आपकी तरफ आऊंगा, ये दोबारा सवाल लेकर के, जो है ना, यानी पढ़ा लिखा तबका, वो
उनके जो है ना वो चरण छू के, पाँव छू के जो है ना वो वहां से गुजरते हैं। जनाब बिलावल जरदारी साहब जो चेयरमैन हैं, वो उनका फलसफा, ये फलसफा बयान कर रहे हैं। न्यूटन भी जो है ना वो परेशान हो गया, साइंसदान भी परेशान हो गए। जब बारिश होता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। तो ज्यादा पूरा कराची इस आ वक्त गया। जो है ना, हाँ वो पानी आ गया और कराची पूरा तैर रहा है इस वक्त, इमारतें तैर रही हैं और जो है ना लोग वहां पे जो है ना, यानी एक वीडियो इस वक्त यूरोप के अंदर वो बड़ी मकबूल हुई, वो मैं जो उसका हवाला दूं कि एक बंदा तकरीबन चौथे माला से जो है वो छलांग लगा रहा है और नीचे आ रहा है वो रोड के ऊपर। वो रोड नहीं है, वो रिवर बन चुका है। और 14 साल से इक्तदार में रहने वाली पार्टी पीपल्स पार्टी, और उसके जो है ना बिलावल जरदारी साहब जो नाकाम कोशिश भुट्टो बनने की, उन्होंने भी जो है ना रचाई कि भुट्टो जिंदा है तो फिर से हम जो है ना जिंदाइयत अपने अंदर डालेंगे वो, और वो उसकी मुसलसल जिद उनकी जारी और सारी है। और जाहिल पढ़ा लिखा तबका, जो मैं वाज़ेह तौर पर ये लफ्ज़ कहूँगा और बमांगे दौल कहूँगा, बीइंग ए कैनेडियन सिटीजन, मुझे ये राइट है कि मैं अपने जो है ना अल्फाज को यहाँ एक्सप्रेस करूँ कि वहाँ उनके सामने मखतूम साहब जो दुनिया से चले गए हैं, मखतूम फ़हीम साहब जैसे लोग भी जो है ना चरणों में बैठते हैं। वहाँ पे जो है ना एतजाज अहसन जैसे लोग भी जो है ना चरणों में बैठते हैं, सिर्फ इसलिए कि भुट्टो जिंदा है। और सिर्फ शऊर की कमी, तालीम की कमी, अगर इन लोगों की तरफ हम देखें तो ये तो तालीम याफ्ता अपने आप को कह रहे हैं। पढ़े लिखे जाहिलों के साथ हम क्या करें नुसरत जी? बिल्कुल आपने सही कहा तसद्दुक। ये जो हमारा सियासी सिस्टम है ना, अब आप मुझे बताएं कि मुझे समझ नहीं आता कि बिलावल जरदारी जिस माँ का बेटा है उसकी सियासी तरबियत उन्होंने की, लेकिन वो जिस तरीके के मशवरे ले रहा है या क्या कर रहा है उसको समझ नहीं आ रहा कि वो जो चारों सूबों की जंजीर थी, उस जंजीर को इनके वालिद साहब ने और खुद बिलावल ने उस जंजीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सारा काम तो इनके वालिद साहब ने कर दिया, बाकी थोड़ा सा रहता था, कुछ जंजीर की कड़ी रहती थी, वो बिलावल ने तोड़ दी। अब वो चारों सूबों की जंजीर नहीं है। अरे भाई, सिंध तुम्हारे हाथ में था, अगर चाहते तो माँ की सियासत को बचा सकते थे, लेकिन ये किस तरह की हुकूमत चला रहे हैं आपको नहीं समझ आता कि आप अगर आपके पास 3 बार ये हुकूमत आई, आप कराची से कश्मीर तक, आपके पास इतनी अच्छी कैबिनेट नहीं है, इतने अच्छे लोग नहीं है, सारे जो भी आते हैं वो कमीशन, जो सबसे ज्यादा कमीशन खिलाता है उसको आप एमपीए बनाकर असेंबली में बिठा देते हो। सामने जितने बैठे होते हैं मेरे सामने वो ठेकेदार जिन्होंने सबसे ज्यादा तुम्हें खिलाया किया। अवाम की जो तकलीफ है, दर्द है, अभी भी गए हुए कराची से उन्होंने निकले और उमरकोट और थर और इधर ये दौरा करके आए। ओ भाई, ऐसे दौरे 50 गाड़ियों का जो आप काफिला लेके गए हो बिलावल साहब, अल्लाह ने आपको इतना दिया, आपके बाप के इतनी जायदाद, इतने असासे हैं, उनमें से कुछ निकाल के 50 ट्रक ले जाते। वहां जाली, जैसे जाली यहाँ पर डिग्रियां हैं, यहाँ जाली टीचर हैं, जाली डॉक्टर हैं, हर चीज जाली मिलती है आपको। इसी तरह जाली खैमा बस्तियां भी बनना शुरू हो गई हैं। वो बिलावल के लिए जाली खैमा बस्तियां बनाकर उसमें किसानों की बेबियों को लाकर कहा कि भाई ये सैलाब जदगान है और इनको आई एम सॉरी। अब ये हालात हैं। अव्वल तो यहीं से शुरू हो जाता है कि बिलावल जरदारी साहब, आप पहले ये तो बताएं कि आपके शनाख्ती कार्ड में क्या है, बिलावल जरदारी है या बिलावल भुट्टो है? आप यहीं से एक चीज शुरू हो जाती है। इस चीज को लेकर आप आगे चले, इस चीज को आप लेकर आगे चले आपको एक मिल गया, माँ की तरफ से एक चीज मिल गई है सियासी तौर पर, उसको आपको ठीक करना था। माँ की शहादत को, उनकी शहादत के बाद आपको अवाम ने इस कदर मैंडेट दिया, उस मैंडेट की किलिंग हो चुकी है। यकीन माने यहाँ पर तालीम का इस कदर बेड़ा गर्क है कि एक तालीम का मिनिस्टर 4-5 महीने 6 महीने मुश्किल से चल पाता है, फिर उसको हटाकर दूसरा तालीम का मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। अरे भाई क्या हुआ? अभी तो वो समझने लगा था, पता चला यही कि भाई कमीशन नहीं पहुंचा रहा था सही तरह, हटाओ दूसरा ले आओ। ये तो आलम है कि तालीम का आपने ये मराया रखा हुआ है कि जो तालीम का मिनिस्टर इस वक्त भी है वो सारा दिन ट्विटर पर बैठा हुआ, कराची के कोने खुदरे में अच्छी अच्छी जगह साफ सुथरी कोई सड़क निकालकर, कभी कहाँ की यूरोप की कोई निकालकर, ये सिंध है, ये सिंध तरक्की कराओ, देखो भाई ये कराची तरक्की करा। ये तालीम का मिनिस्टर का काम है? आप 4 मिनिस्टर और 1 वजीर आला पर आप हुकूमत चला रहे हो। वजीर आला मुराद अली शाह साहब, जो आपको सुपरमैन समझते हो, आप समझते हो कि मैं इस तरह पूरी सिंध को मसाइल हल कर लूंगा। इस तरह नहीं होता है। आधा टाइम तो आपकी बिलावल जरदारी की आप जी हुजूरी में लगे रहते हैं।
आप हर वक्त बैठे हुए असेंबली में चीखो पुकार बचाते हैं, हम और 12 साल आएंगे, हम फिर आएंगे। ओ भाई अल्लाह का वास्ते, अगर इसी तरह 12 साल आप और आए और इस तरीके से आए तो फिर क्या हमारे जो सिंध का जो हाल है वो इससे ज्यादा कराची से कश्मीर तक तबाह हो जाएगा, लोग खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जहां बच्चे जन्म देने के लिए माँ को हॉस्पिटल के बाहर जगह मिले और अंदर एंट्री ना मिले, और जहां जो जनाजे हैं वो जनाजों को ट्रैक्टर पर, ट्रॉलियों पर, स्कूटरों पर और दरियाओं से गुजार कर जनाजे ले जाया पड़े, और 12 साल, तो भाई हिसाब तो बनता है बिलावल जरदारी, 12 साल की हुकूमत और एक एम्बुलेंस नहीं। कराची जैसे शहर में एक कोई ऐसी एम्बुलेंस नहीं है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो इक्विप्ड हो, जिसमें सारी फैसिलिटीज हो, और इस तरह के कई बच्चों के और ऐसे आपको हादसा मिलेंगे। क्योंकि एम्बुलेंस, हाँ फोन करो, ईजी, चीपा, ये है। हम फलाही इदारों पे चल रहे हैं। इन ऐसी हुकूमतों को तो इखलाकी तौर पर चले जाना चाहिए। और भाई अगर कराची में एक ऐसी एम्बुलेंस नहीं दे सके, खरबों के आप पैसे रखते हो, कहां जाते हैं हमें पता नहीं है। सबको पता है कि पैसा आपके अकाउंटों में जाता है, ऊपर से नीचे सतह तक आपके लोग बैठे, आप अपना सेक्रेटरी रखते हैं, आप अपना एसपी रखते हैं, आप अपना एसएचओ रखते हैं, आप अपना एमएस रखते हैं, आप हर इलाके में आपका एमपी एमएनए कहेगा कि मेरी मर्जी का ये लगेगा ऑफिसर, तो मैं वहां से आपको सारे पैसे भी कलेक्ट करके दूंगा और अगली दफा मैं दोबारा जीत के भी आऊंगा। अगर मेरे मर्जी का ऑफिसर नहीं हुआ तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। और जो पुलिस का एसएचओ, एसपी, एमएस जो भी है वो इनकी जी हुजूरी करेगा, और फिर लाजमी अपने उनको खुश करने, आकाओं को खुश करने के लिए दे धड़ाधड़ लोगों पर जुल्म जो करना है, लोगों में खौफ दहशत फैलानी है, और जनाब फिर दोबारा वो एमपी जीत के आ गया। ये हमारा हाल है। यह है बिलावल जरदारी की अगर सियासत, तो फिर ये सियासत खत्म होने जा रही है। ये इस तरह नहीं चलेगा। एक दिन आएगा, अल्लाह पाक करेगा, अवाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से अब जो कानून की जहां पासदारी नहीं होती ना तसद्दुक, फिर अवाम कानून को अपने हाथ में ले लेती है। फिर अवाम कहती है कि अगर हम जैसे हमारे बच्चे महफूज नहीं, हमारी माएँ महफूज नहीं, हमारी बीवियां महफूज नहीं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं, और ये जो इदारे और जो लोग हमारे टैक्सों से मराहत लें और अयाशियां करें, तो फिर बेहतर है कि हम खुद ही उस मुजरिम को पकड़ें और उसको जलाएं, मारें। और ये होगा, ऐसा होगा अगर कानून ने अपना काम नहीं किया, पासदारी नहीं की और गुड गवर्नेंस नहीं हुई। तो मैं ये इमरान खान साहब को भी आपके इस चैनल के तवज्जुह से कह रही हूँ, इमरान खान साहब, कानून की पासदारी बहुत जरूरी है, ऊपर से निचली सतह तक। ऐसे अगर इसी तरह चलता रहा, हमें तो ये था ना कि तब्दीली आएगी, करप्शन खत्म हो जाएगी, और जितने भी लोगों ने लूटा है वो लूटा पैसा आएगा, और हमारे मुल्क में अच्छे ईमानदार लोग आ जाएंगे, हम सुकून का सांस लेंगे। हम अपनी बेटियों को बाहर भेजते वक्त इतना हमें एतमाद होगा कि नहीं, मेरी बेटी गई है तो महफूज हाथों में वो है, वापस सही सलामत आएगी। अभी तक तो नहीं है। जिन लोगों ने अभी प्रोग्राम ज्वाइन किया नाज़रीन, उनको ये बताता चलूं कि ज़मा इंटरनेशनल की नशरियात कैलगरी स्टूडियो से मैं सैयद तसद्दुक़ हुसैन आपकी खिदमत में हूं, और जनाब मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं वो दुख्तर पाकिस्तान, सिंध की नहीं मैं कहूँगा, दुख्तर पाकिस्तान कहूँगा। बेशक वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध की है, लेकिन जो उनकी आवाज़ है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है। वो इसलिए कि पिसे हुए तबके की बात कर रही हैं, कूड़ा करकट ढेर पर पैदा होने वाले उस नामौलूद बच्चे की आवाज़ है। वो जो आवाज़ जिसने असेंबली के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के ऐवानों तक ये आवाज़ गई है, और इसको हम पहुँचाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है, जो भुट्टो साहब अभी भी जिंदा हैं और उनकी जिंदाइयत पर जो है ना वोट लिए जा रहे हैं, लोगों को जो है ना वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अकाउंट दूध वाले का भी निकलता है तो उसमें से खरबों रुपए के पैसे जो है ना निकल रहे हैं। करप्शन का जो वादा इमरान खान साहब कह के आए थे कि हम उनको पाबंद सलासल करेंगे, नैब इदारे किस तरफ आप देख रही हैं कि क्या ये पैसा वसूल किया जाएगा जो स्विस अकाउंट में उस वक्त का पड़ा हुआ था, और क्या वो वसूल किया जाएगा और सिंध की तकदीर फिर से बदलेगी, फिर से जो है ना वो जो है ना आप जैसी आवाज़ जो है उसको जिंदाइयत और मजबूतियत मिलेगी। आप ऑप्टिमिस्टिक हैं इस हवाले से? और कुरान की जो एक आया जो है ना यहाँ मैं कहूँगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान में ये फरमाया है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ लोगों मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना। रहमत तो बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए उसने वब्तगू बिफज़लिल्लाह भी कहा कि उसके लिए वसीले हमने तलाश करने हैं, और वसीलों की ही दुआई इस प्रोग्राम का मकसद है। खुर्शीद ज़मा साहब, खुर्शीद अब्बासी साहब इस वक्त ज़मा टीवी के जो है वो
روئے رواں ہیں واشنگٹن سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں. میں ان سے ٹیک لے کر پھر آپ کی طرف آؤں گا اور اس کے بعد ہم آپ کامنٹس شامل کریں گے کیونکہ پروگرام کا ہمارا وقت جو ہے نا تقریباً ختم ہونے والا ہے. خورشید صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی شاہ صاحب بالکل دیکھیں کتنی آپ کو تفصیل سے انہوں نے باتیں بتائی اور بالکل یہ سچ ہے, آن گراؤنڈ یہی کچھ ہے. تو یہ بلاول سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے جی. بلاول بچہ ہے, عزیز ہے ہمارا, وہ سیاست اس کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہی بات ہے کہ بھٹو کو زندہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. یہ بھی ایک ایسا نعرہ ہے جو آج تک پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اب بھی زندہ ہے. مجھے بھٹو صاحب کے زندہ یا مردہ ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں, ہم سب نے مرنا ہے, جانا ہے. تو یہ وہ سیاسی فراڈ ہے جو پاکستانی عوام سے, خاص کر سندھ کو پسماندہ جو اگر رکھا گیا ہے تو وہ پیپل پارٹی کی مہربانیاں ہیں. پاکستانی عوام کو سینٹی کرنے کے لیے. دیکھیں جی ہم تو اس بحث میں نہیں جاتے جی, بالکل ان کا جو ہے بلخیا ولیکن لا تشعرون, شہادت کو اپنی طرف لے جائیں. لیکن زندہ ہے تحریک جو ہے وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسانی حقوق کی جو روٹی کپڑا مکان کا سلوگن لے کر وہ آئے, کیا وہ پورا ہو رہا ہے وہاں؟ نہ بالکل نہیں ہو رہا جی. یہی تو تڑپ ہے. یہ نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں روٹی کپڑا مکان آج تک تنگی تکلیف کا باعث ہے. اور اس کی ساری ذمہ داری پاکستان کے سیاسی لیڈروں کے اوپر آتی ہے, چاہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے یا زرداری ہو یا عمران خان ہو. یہ سارے کے سارے اس کے ذمہ دار ہیں. اور ان کی غلطیوں اور ان کی نالائکیوں کا نتیجہ ہے کہ ملک جو ہے انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بدنام ہو رہا ہے بہت زیادہ. جی گرے لسٹ میں ہے, بلیک لسٹ کی طرف جا رہا ہے. گرے لسٹ جو ہے نا اس وقت چل رہی ہے. اب یہ حالت ہے کہ آپ کا لا انفورسمنٹ کا آفیسر کہتا ہے کہ جی یہ خاتون جو ہیں یہ اکیلی کیوں نکلی ہیں باہر. ابے بھائی تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ ریاست کے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا 24/7. یہ کہاں سے تم نے قانون بنا لیا اپنے گھر میں بیٹھ کے یا اپنی ذاتی منطق پہ, اور اوپر سے جو اس کو انڈوز کر رہے ہیں سیاستدان. اب ان کے دماغوں پہ بھی اللہ نے پتہ نہیں کس چیز کا تالا لگا دیا کہ وہ کہتے تو وہ قانون ساز ہیں اپنے آپ کو, تو ایک پولیس والے نے ان کو آگے لگا لیا. میں تو اس کو سپاہی سمجھوں گا نا. اس سپاہی نے پوری کابینہ پوری فیڈرل گورنمنٹ کو آگے لگا دیا, پوری پنجاب کی گورنمنٹ کو آگے لگا کے وہ کہتا ہے جی وہ پوچھ کے آتی, وہ اپنے ساتھ بندہ لے کے آتی. تیری اس سوچ پہ میں ماتم ہی کر سکتا ہوں. اور پاکستان کے اندر جب تک اداروں کے اندر اس طرح کے لوگ آپ لگائیں گے یا ان کے اوپر اس طرح کے لیڈر بیٹھیں گے تو تبدیلی شاہ صاحب کوئی بھی نہیں آئے گی. وہ نہ بلاول لے کے آ سکتا ہے. عباسی صاحبہ کی فلور پر کی گئی تقریر جو ہے, جو پروونشل اسمبلی ممبر ہونے کی حیثیت سے جب انہوں نے سندھ کے اندر جو تقریر کی تھی جس میں انہوں نے مخاطب کر رہی تھی تمام تر بجٹ سے جو ہے چیزیں, پیسے وہ جو ہے نا ناجائز ان کا استعمال کر کے بچے کوڑے کرکٹ میں پیدا ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ اسپیکر صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے ابھی تک اس سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کہی جو ہے نا بجٹ کے حوالے سے ہو. یعنی اس بات پہ آپ جو ہے نا بحثیت جو ہے نا امریکن سٹیزن آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی سوچ ہے اور یہ کون سی تحریک کا حصہ جو ہے نا یہ لوگ ہیں, کیا کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو؟ یہ ان کی وہ جو 20 جون والی تقریر ہے نا, وہ یہ مجھے کریکٹ کریں گی اگر میری معلومات ٹھیک نہیں ہے, یہ 22 بلینس کی بات کر رہی تھی. ان کے شاید اس ریجن میں انہوں نے کسی جگہ وہ فنڈ دیے تھے. تو ان کا یہ سوال تھا ان کے ساتھ کہ یہ فنڈز کہاں استعمال ہوئے ہیں. یعنی آپ کے جیبوں میں گئے, اگر آن گراؤنڈ لگے ہوتے تو وہاں کوئی اسپتال ہوتا, کچھ لوگوں کی فلاح و بہبود کے اوپر لگا ہوتا تو نظر آتا. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ان کی ذمہ داری ہے بات کرنا, اپنے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت سے پوچھنا. مگر وہی بات ہے کہ ان پڑھ منسٹر کے آگے آپ قانون سازی انگریزی میں رکھ دیں گے تو اس سے کیا پتا ہے, اس نے تو لبے کی کہنا ہے, ہاتھ کھڑا کرنا ہوتا ہے منظور ہے منظور ہے. ابے بھائی اس کو کیا پتا اس کے اندر لکھا کیا ہے. یہ چیز ہے نا. اور پھر دوسری طرف اس بات کا بھی آپ جو اس وقت جن لوگوں
ज्वाइन किया लंदन से। इस वक्त जो है हमारे कश्मीर टीवी चैनल के रुए रवा हैं जनाब राजा सजावत साहब, वो कह रहे हैं जी कि शाह जी नुसरत साहिबा इज अ वेरी ब्रेव पर्सन। ये जरूर है, देखिए जी उन्होंने लंदन से बैठ के उनकी तारीफ तो जरूर कर दी, लेकिन जो तकलीफें इनको वहां ग्राउंड पे अंदर हैं, चूंकि एक असेंबली मेंबर होने के नाते जब लोग वहां के लोग इनको ये कह रहे हैं जी कि आप छोटी सी गाड़ी में आई हैं, ये क्या है मोहतरमा, तो इससे आप जो कैसे बदलेगा ये घिसा पिटा निजाम खुर्शीद साहब? बिल्कुल सही बात है जी। जब आपने मयार अपनी लिविंग को रख लिया, अच्छी गाड़ी को रख लिया, अच्छे बंगले कोठी को रख लिया, आप लीडर तो नहीं, आप तो चोर हैं। ऐसी सोच तो चोर सोचता है। आपने और मैंने इन चीजों की परवाह तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं सूट टाई लगा के फिरता रहूं पूरा दिन तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं कुर्ता लगा के जाता हूँ, लोगों के काम आता हूँ, शाम को मेरे घर पहुंचने से पहले अल्लाह भी राजी और उस अवाम की दुआएं भी मेरे साथ होगी। मुझे और नुसरत बहन को तो ये काम करना है। हमें ना गाड़ियों की जरूरत है, ना बंगलों की, ना जब मरना है उस बड़ी अदालत में पेश। क्योंकि वक्त की कमी है खुर्शीद साहब, मैं सीधा जाऊंगा। हम चाहते हैं कि नुसरत साहिबा को ज्यादा सुना जाए। उनकी जो है ना इस वक्त तक नुसरत साहिबा को सुनने के लिए लोग बेकरार हैं। एक गुजारिश है, सब लोग दोस्तों के काफी सारे कमेंट्स भी नजर आ रहे हैं सामने, उनको भी शेयर करना है, तो आप इनसे टेक ले लें, उसके बाद आप एड्रेस करें लोगों। जी मैं आखिरी टेक से लूंगा और उसके बाद हम कमेंट्स की तरफ आएंगे और वो कमेंट्स जो है ना हम शेयर करेंगे, ट्वीट्स जो है वो ट्वीट्स शेयर किए जाएंगे। नुसरत अब्बासी साहबा जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, नुसरत अब्बासी साहबा एक दुख्तर पाकिस्तान की आवाज सिंध असेंबली में। उमूमन ये होता है कि इक़्तिदार के ऐवानों में जब लोग जाते हैं तो वो अवामुन नास को भूल जाते हैं। ये सिंध का नहीं पूरे पाकिस्तान का जो है वो अलमिया है, और सिंध असेंबली के लिए खास तौर पर मैं ये कहूँगा कि इसलिए उसका अलमिया है कि वहाँ जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। पानी जब जो है ना बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। कहने वाले फलसफे न्यूटन के जो है ना वो छोटे भाई जनाब बिलावल जरदारी साहब जो है ना वो उन्होंने कितनी तवज्जो उस शहर की तरफ दी, सिंध की तरफ दी। पूरे सिंध के अंदर जो है ना इस वक्त क्या जो है ना हालात है, वो चीदा चीदा जो है नुसरत साहिबा इससे वाकिफ हैं और ये खुद जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, लोगों की आवाज बनती हैं। लेकिन एक जो है ना मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के पास ना तो इतना बजट है कि वो सब लोगों को अकोमोडेट कर सके, ना तो इतनी बड़ी जो है वो उनकी कैपेसिटी है कि पूरे पाकिस्तान को जो है ना वो सीधा कर सके। लेकिन जदोजहद इनकी जारी है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह पर। एक फ्लोर के ऊपर जब उन्होंने तकरीर के दौरान एक फिक्रा भी कहा था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खुदा की अदालत में जाओगे, पूछा जाएगा तुमसे। यकीन मानिए कि मैं ये लफ्ज अभी भी कह रहा हूँ तो मेरे जिस्म पर गुस्बम आ रहे हैं। क्यों नहीं जाग रही है ये अवाम? नुसरत जी क्यों नहीं जाग रही है? आप अपना आखिरी टेक दे दें, उसके बाद हम जो है ना कमेंट्स की तरफ आएंगे। जी तसद्दुक बिल्कुल, अवाम क्यों नहीं जाग रही? अवाम तकलीफ में है, अवाम बहुत अजियत में है। उनके ऊपर जो हुक्मरान है उन्होंने उनकी सोचों को उनके आसपास इस तरह का सिस्टम बना लिया है कि अवाम बहुत मजबूर हो गई है। और आपने कहा ना कि ये असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं, आप कभी सिंध असेंबली आए, मेरी असेंबली क्या पंजाब या दूसरी असेंबलीज में भी जाएंगे तो आपको जिस इस सिंध असेंबली के मेंबर्स कि अगर आप असेंबली में आए और जिस गाड़ियों से वे उतरे, उन गाड़ियों की कीमतें देखकर और उनके हलकों में जाकर उसकी आवाम को देख लें, ओ माय गॉड, अवाम के नुमाइंदे इतने माशाल्लाह लेविश अमीर तरीन, और उनकी अवाम की यह हालत है कि 70% तसद्दुक गटर मिला पानी पीते हैं सिंध की अवाम। 70% गटर मिला पानी। कईयों को तो कराची जैसे शहर में पानी नसीब नहीं है पीने का। कराची जैसे शहर में माए बहनें बेटियां लोटे बाल्टियां और बोतलें लेकर फिर रही हैं, पानी पानी पानी। शर्म नहीं आती ऐसे हुक्मरानों को? इनसे अल्लाह हिसाब नहीं लेगा? आप क्या समझते हैं? हुक्मरान का हिसाब और सख्त होगा। अपना तो देगा, अवाम का देगा। बहुत बुरे हालात हैं। इसलिए ये हमारा वो सूबा है जहां शराब जाती है तो वो शहद बन जाती, शराब गई तो शहद बन गई। वो मेरे खुदाया कहां जाएं?
तो ये हालात हैं, ऐसे में तब्दीली, शऊर, ये सारी चीजें तब तक होंगी, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन जब तक सिस्टम बेहतर नहीं होगा ना, सिस्टम बेहतर करने के लिए शख्सियतें अच्छी आना, ऑनेस्ट लोग आना बहुत जरूरी है, वरना ऊपर से निचली सतह तक आवे का आवा सब ये समझते हैं कि ये जो हम मिठाई, साईं ये मिठाई यहाँ रख दो, साईं मिठाई दराज में रख लो, ये मिठाई है, ये रिश्वत नहीं है, ये करप्शन नहीं है, ये कमीशन नहीं है, ये तो मिठाई है। जब ये है सोच कि ये फला के पास इतना है, मेरे पास नहीं है, जहां पर बच्चे अमीरों के प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, गरीबों के बच्चे को स्कूल ना हो, डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पर मरे कोई तो प्राइवेट स्कूलों में जाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ। एमपीए साहिबान को कोरोना था तो सब बड़ी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, इवन इतना कि यहाँ की एक बड़ी हॉस्पिटल की मोहतरमा भी प्राइवेट अस्पताल में गई। यानी ये हाल है कि गरीबों के जिनके लिए है उन लोगों की वहां एंट्री बैन है। आज भी मुझे फोन आते हैं, दी वो फला अस्पताल में हमें अंदर सरकारी अस्पताल में उन बेचारों को अंदर एंट्री नहीं है। तो बहुत टाइम नहीं है, टाइम की कमी है और मसाइल इतने तसद्दुक मैं क्या करूं। जहां यहाँ पर एक आसरा था, नैब चेयरमैन जो अभी आए थे, इनमें बड़ी उम्मीदें थी, मैंने भी असेंबली में बड़ा पुकारा था, चेयरमैन साहब अल्लाह का वास्ता है कुछ कर दीजिए, हमारे बच्चों का लूटा हुआ पैसा ले आइए। लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक इंतजार कर रही हूँ। और इमरान खान साहब से भी उम्मीद थी कि ये 2 पार्टियों ने तो हुकूमत को लूट लिया, जो एक दूसरे को सड़कों पर घसीट रहे थे, पेट फाड़ के निकालना है। लोग इंतजार कर रहे थे कब पेट फटेगा, कब पैसा निकलेगा। अरे ये क्या हो गया, अब तो ये गले मिल गए हैं यार। हद होती है अवाम, खुदा का वास्ता है अवाम, अल्लाह का वास्ता है पाकिस्तान की अवाम, समझ लो जो लोग एक दूसरे का पेट फाड़ रहे थे आज वो गले मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है वो सिर्फ अपने मफादात के लिए, आपका दुख दर्द किसी के पास नहीं। इंटरनेशनली डायस्पोरा जो है ना कश्मीरियों का बड़ी तादाद में आपका प्रोग्राम देख रहा है, और मैं 400 दिन से ऊपर जो है वो हमारी मुनकसम रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो इस वक्त अजाब का शिकार है। हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से जो उनके ऊपर उन्हें पाबंद सलासिल किया 370 और 35A को हटाकर उन्हें जो है ना अपनी टेरिटोरियल जो है ना वो हिस्सा बनाने की जो एक कानूनी साजिश की, जिसका केस कश्मीर का अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मौजूद है। आपका टेक लेना इस पे बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान का जो है वज़ीर-ए-आज़म जब हमारे न्यूयॉर्क में गए, इत्तफाक से मैं वहाँ कवरेज के लिए वहाँ मौजूद था, और उस मैंने बल्कि एक सवाल भी शाम में उनके हिसाब से पूछा था कि वाई नॉट कि आप कश्मीरियों को राइट दें कि जो है ना वो कश्मीरी खुद अपने केस को प्रेजेंट करें। लेकिन उन्होंने कहा जी हैं हमारे साथ है, वो उनके अपने अपॉइंटेड जो लोग थे वही थे हैं, और वो उनकी आवाज़ ये थी कि वो पिछले बेंचों के ऊपर बैठे हुए थे, कहीं कोई यूनाइटेड नेशन में उनकी जो है ना बातें हुई। यूनाइटेड नेशन में एक लच्छेदार तकरीर हुई, अप्रिशिएट करते हैं खान साहब ने जो है ना बड़े बमांगे दौल अल्फाजों में, और हमें भी एक उम्मीद रोशन हुई कि जनाब कश्मीर का कुछ होने जा रहा है। उस तकरीर में उन्होंने कहा जी कि हर जुमे के जुमे, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हर जुमे के जुमे कश्मीरियों का डे बनाया जाएगा। जुमे से हम फिसलते फिसलते जनाब हम आ गए जनाब 1 घंटे पर, 1 घंटा जो है ना वो दिन बनाया जाएगा। वहां से फिसलते फिसलते हम आ गए 1 मिनट की खामोशी पर, और अब जो है ना लग ये रहा है कि दोनों तरफ से कुछ बंदर बांट हो चुकी। आपका इनपुट? बिल्कुल तसद्दुक, हमारे दिल धड़कते हैं कश्मीरियों के लिए, और यकीन माने ये लफ्जों की बात है कि लफ्ज भी हम जब अदा कर रहे होते हैं ना तो हम कहते हैं ये भी बहुत कम है। कश्मीरियों के साथ जिस तरीके के हालात, जिस तरह की जुल्म सितम हो रहा है ना, वो तो हम यूं समझे कि सुनते चले आए, बचपन से ये सिलसिला चल रहा है। हमारे बच्चे जवान हो गए, हमारे बच्चे भी हमसे सवाल करते हैं कि ये ऐसी कौम है जिसकी नस्लों को खत्म कर दिया गया, जिनके नौजवानों को खत्म कर दिया गया, जहां हमारी बच्चियों के गैंग रेप होते रहे, जहां मैं क्या क्या बताऊं, जिनके ये पैलेट्स मशीन पता नहीं किस तरीके के जुल्म है कि सारी दुनिया, और मैं आपके इस जो सारी दुनिया लाइव सुन रही है, मैं तमाम उन ममालिक को सबसे कहती हूँ, खुदारा अगर सब सीरियस हो ना, अगर चाहे सीरियस होना तो इस मसले को हल किया जा सकता है। लेकिन हर मुल्क के अपने मफादात है, हर मुल्क के, और अक़वाम मुत्तहिदा मतलब जहां पर हम वहां रेजोल्यूशन पास होते हैं, वहां क्या कुछ नहीं होता
वहां पर अगर ऐसी जुल्म सितम हो रहा है, ऐसी बर्बरियत हो रही है और हमें वहां भी इंसाफ न मिले कश्मीरियों के हवाले से, तो फिर और कौन सा फोरम रह जाता है, फिर हम कहाँ जाएं अल्लाह के अलावा। तो फिर अल्लाह से तो दुआएं हैं इनके लिए, लेकिन ये वो जगह थी जहां हम चाहते हैं कि वहां इन लोगों का मसला हल हो, और वहीं पे हो सकता है अगर वो चाहे तो इसलिए हमारे दिल हैं आप लोगों के साथ धड़कते हैं, और हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह पाक वो दिन दिखा कि इनको इनके हकूक मिले, जो जहां भी जिधर भी ये चाहते वो आजादी इनको मिले, क्योंकि आजादी बहुत बड़ी नेमत है, आजादी बहुत बड़ी नेमत है, इसको आजाद लोग ही समझ सकते हैं और कश्मीरियों से ज्यादा इसको कौन महसूस। मैं अपने वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे जो है वो खुर्शीद जमान साहब, आप उनमें से सवाल भी उठा सकते हो और मैं भी पढ़ूंगा, जो हमारी मोहतरमा नुसरत अब्बासी साहिबा जो हमारी मेहमान थी आज, उनके लिए जो कमेंट्स आए हैं, पब्लिक उनके लिए क्या कह रही है, वो हम कुछ टाइम, जो कि वक्त की कमी है और कुछ ही हम पढ़ पाएंगे। नाज़रीन आपसे माजरत चाहेंगे, आप सब लोगों के शायद हम ना पढ़ पाएं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो है ना कमेंट्स हैं, तो कुछ अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दे स्टूडियो में, हमारे प्रोड्यूसर साहब, तो मैं जो है ना यहाँ ज़रूर उनको मेंशन करूँगा। नुसरत साहिबा, आपका बेइंतहा शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा बनी। पहला कमेंट्स जो है ना जुल्करनैन महफूज साहब कह रहे हैं कि एक बार फिर सराड़ा और गोलाबारी शुरू हो चुकी है। ये कश्मीर से उन्होंने ट्वीट किया है कि अल्लाह पाक सब की खैर फरमाए। ये रिजल्ट ले चुके वहाँ पे जो है ना वो गोलाबारी हो रही है, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर खेली जा रही है इस वक्त दोनों तरफ से। सो दूसरा जो ट्वीट है वो है सैयद महमूद बुखारी साहब का। वो कह रहे हैं कि हम भी नुसरत अब्बासी साहबा को ज़मा टीवी में दिल से खुशआमदीद कहते हैं। जी, आपको उन्होंने वेलकम किया है। और थैंक यू। अब्दुल साहब भी कह रहे हैं कि नुसरत अब्बासी साहबा एक दबंग आवाज है, सिंध असम्बली की ज़मा टीवी पर उन्हें हम खुशआमदीद कहते हैं। थैंक यू अब्दुल। एंड अब्दुल साहब फिर कह रहे हैं जी, खुर्शीद ज़मा साहब आप सलामत रहें, और तसद्दुक साहब और पूरी ज़मा टीवी की टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस चैनल का दिन ब दिन कामयाबियों की तरफ गामजन है। अब्दुल रज़ाक मोहम्मदी, बहुत शुक्रिया जी आपका। और मलिक सरफराज हुसैन अवान साहब कह रहे हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, सैयद सदीक हुसैन, मोहतरम खुर्शीद ज़मा साहब और मोहतरमा नुसरत अब्बासी साहबा, मेरे सर्वे और मेरी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 60% लोग खुद अपनी बुनियादी हुकूक से वाकिफ नहीं, और 40% लोग वाकिफ हैं, वो तमाम तर मरहात के मजे ले रहे हैं। इस वक्त सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की है कि कम से कम निसाब की किताबों में बच्चों को बताया जाए कि रियासत क्या होती है, रियासत की जिम्मेदारी क्या होती है, और बतौर शहरी इनके हुकूक क्या हैं। मैं इस मौजू पे मोहतरमा नुसरत सैर अब्बासी साहिबा से आगे किताब पढ़ने टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, माजरत चाहूंगा। अच्छा, वो इन्होंने पढ़ लिया, आप ये जवाब देंगी शाह साहब? जी, मतलब आप जवाब दे रहे हैं मलिक सरफराज साहब के। बिल्कुल जी। सबसे मेन हमारा मसला क्या है पता है क्या? हम दो किस्म की नेशंस बना रहे हैं पाकिस्तान में, दो किस्म की नेशन, क्योंकि तालीमी निसाब इतना फर्क है। एक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा और एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, जब दोनों बच्चे एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पाते। वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा नजरें झुकाकर कंफ्यूज, उसकी हालत ये होती है, और सरकारी स्कूल से पढ़ने वाला बच्चे की क्या हालत होती है उसको आप समझ सकते हैं कि क्या। तो इस तरह के, और सरकारी स्कूल में जो निसाब पढ़ाया जा रहा है वो पता नहीं कितने हमारे बचपन हमसे पहले के पहले लोग पता नहीं क्या आजकल के हवाले से वो निसाब नहीं है। अच्छा, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो निसाब इस्लामी तौर पर तो कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। अच्छा, मुझे एक वाकया याद आया, किसी प्रिंसिपल, प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल के पास किसी बच्चे के एडमिशन के लिए पेरेंट्स गए, तो उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ इस्लामियात पढ़ाई जाती है, तो उन्होंने उसको शटअप कॉल दे दी। अगर आपको बच्चे को इस्लामी तालीम देनी तो घर जाके पढ़ाओ। माय गॉड, ये यहाँ पाकिस्तान के कराची के एक स्कूल की बात बता रही हूँ। तो इस तरह का माहौल है, इस तरह की दो कौमें पैदा कर रहे हैं जो कि बहुत हमारे लिए आगे मसाइल पैदा करने वाले हैं। और वहां पर बच्चों को जॉन, सिसलिया, उनके नाम बच्चों को नहीं पता कि हमारे मजहब में क्या, हमारे पाकिस्तान के कितने बड़े हीरोज रहे या क्या।
تو اس طرح کی Absolutely. اگر یہ چیزیں ہیں, ڈبل اسٹینڈرڈ ہوگا تو پھر ہم بہت مشکل ہوئے. تو یہ میری تو پوری خواہش ہے, اور اس دفعہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ ایکول نصاب لایا جائے گا, تو خدا کرے کہ ایکول نصاب آ جائے اور اس ملک میں ایک قوم پیدا ہو, اور ایک قوم ایک سوچ کی, ایک تعلیمی معیار ہوگا جس کا, تو میرے خیال میں کچھ بہتری آئے گی. زبردست. اگلا ٹویٹ ہے جی عدیل بابا جی کا, کہہ رہے ہیں جی پاکستان کا سب سے بدنام ادارہ پولیس ہے, وہ عوام کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور سیاستدانوں کے لیے پولیس ان کے پاؤں کی جوتی ہے. میں یہاں پہ ایکسپٹ دن کہوں گا, ایکسپٹ دن دختر پاکستان جیسی خاتون جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, نصرت عباسی صاحبہ, سیاست سے ان کا بھی تعلق ہے, اور اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ سیاست دین سے جدا نہیں, اگر وہ جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست کا اصل جو ہے نا, اگر آپ نے وتیرہ دیکھنا ہے, nobody is a perfect being a human, ہم سب میں سے کچھ مسٹیکس ہوں گی, لیکن نصرت صاحبہ نے آواز جو ہے نا پوری دنیا کے اندر, پاکستان کی آواز بن کر, پاکستان کے غریب طبقے کی آواز بن کر, پاکستان کے پسے ہوئے طبقے کی آواز بن کر دنیا کو یہ بتایا ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. ڈونٹ پٹ ایوری بڈی ان the same basket, جو ہے نا ہر ایک ڈفرنٹ جو ہے وہ کیٹیگری کا ہے. تو اس سے چونکہ ان کا ایک خیال ہے, تو راجہ عارف صاحب لائر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی آزاد کشمیر دنیا کا وہ واحد آزاد ملک ہے جس کا اپنا نصاب تعلیم نہیں ہے, جس کے اسکولوں میں کشمیر کی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی ہے. البتہ پڑوسی ملک کی تاریخ ضرور پڑھائی جاتی ہے, بلکہ آپ کشمیر کا نقشہ تک نہیں دیکھ سکیں گے, مگر پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں وہ آزاد ہیں. اور یہ تو میں نے بھی ایک سوال اٹھایا تھا کہ دنیا کی واحد ہماری ریاست ہے جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے. نصرت صاحب آپ کا ان پٹ ضرور لوں گا اس پہ, کہ میں نے امریکہ کے اندر آزاد امریکہ نہیں پڑھا, میں جاپان کے اندر رہا تو آزاد جاپان اس کے پیچھے لکھا ہوا کبھی نہیں دیکھا, میں کینیڈین سٹیزن ہوں یہاں پہ تو آزاد کینیڈا اس کے پیچھے نہیں لکھا ہوا. یہ واحد ریاست ہے جس کے پیچھے آزاد کشمیر لکھا ہوا ہے. آزاد کشمیر کیا ڈرامہ ہے جی نصرت جی؟ بالکل جی, جیسے میرے بھائی نے کامنٹ کیا کہ اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے تصدق, اس سے بڑی اور بات کیا ہے کہ آپ کو اپنا تعلیمی نصاب ہی نہیں ہے, آپ کو اپنے علاقے, اپنے لوگوں, اپنے معاشرے کے بارے میں, اپنی جو کلچر ہے اس کے بارے میں نہیں پڑھایا جا رہا, پڑوسی ملک کے کلچر اور اس کا حساب سے پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور صحیح بولا آپ نے کہ ہم نے کہیں کسی ملک کے ساتھ آزاد لکھا ہوا نہیں دیکھا. اگر یہ آزاد ہے تو حقیقی معنوں میں آزاد بھی تو ہو, کہ صرف آزاد کا لفظ دے کر اور اس کو مفلوج کر دیا گیا. تو میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے ایک سوچ ہے, ایک المیہ ہے. آصف سلیم صاحب کہہ رہے جی نصرت عباسی صاحب آپ بہت اچھا بولتی ہیں, ہمیشہ عوام کی بات کرتی ہیں, آپ نیشنل ٹی وی پر ٹاک شوز میں کیوں نہیں آتی؟ محترم, سب سے پہلے تو نیشنل ٹی وی کی تعریف آپ سے میں پوچھوں گا کہ کیا ہوتی ہے. یہ زمان ٹی وی واشنگٹن باقاعدہ رجسٹرڈ امریکہ کے اندر ایک ٹی وی چینل ہے. نیشنل ٹی وی اگر آپ سے مراد آپ پاکستان کا پی ٹی وی لے رہے ہیں جہاں پہ گرج چمکنے سے بارش کا امکان ہے کہ خبریں سن کر ہمارے کان پک چکے ہیں, جو صرف حکومت کی جو ہے نا وہ لونڈی بن کے کام کرتا ہے, تو اس کا جواب میں ہی آپ کو دیتا ہوں. نصرت صاحبہ کی طرف میں اس سوال کو نہیں لے کے جاؤں گا, یہ ان کے شان کے خلاف ہے یہ سوال, میں سمجھتا ہوں. اچھا اگلا سوال, اگلی طرف آئیں جی پروفیسر صاحب. اچھا یہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, آصف سلیم صاحب کہہ رہے ہیں محترمہ عمران خان صاحب اپنی پوری انرجی لگا رہے ہیں لیکن 18ویں ترمیم آڑے آ رہی ہے, آپ عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں, انشاءاللہ سب چور کٹہرے میں ہوں گے. یہ ان کا اگلا جو ہے نا ٹویٹ ہے, اس پر روشنی ڈالیے محترمہ. جی بالکل, عارف صاحب نے کہا 18ویں, نو ڈاؤٹ کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے اوپر وفاق جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا. حالانکہ وفاقی طور پر کہا تو یہ جاتا ہے کہ وفاق جو ہے وہ سپورٹ کرے, وفاق ساتھ دے. آئے دن آپ بلاول زرداری کا جو سن رہے, آج بھی ان کا تھا کہ اگر ہمیں نہیں کیا تو ہم اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں, اسلام آباد کے راستہ ہمیں پتہ ہے. تو 18ویں ترمیم کے بعد سب کچھ نیچے ڈیوالو ہو چکا ہے, لیکن بڑی بات بدقسمتی یہ ہے کہ آ گیا نیچے, صوبوں تک آ گیا. پھر صوبے, میرے صوبے میں تو یہی ہے, باقی پنجاب اور ادھر تھوڑا بہت کچھ بہتری ہے, لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ صوبے پھر نچلی سطح پر پاور نہیں بھیجتے. اوپر سے تو آپ کو طاقت چاہیے, لیکن نچلی سطح پر بلدیاتی سسٹم کو مضبوط ہونا, یہ سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے. باہر ملکوں میں اگر آپ دیکھیں تو بلدیات سب سے مضبوط ہوتا ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 18ویں ترمیم آڑے آتی ہے اور پھر اس میں پھر وفاق کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایک شاہ صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, آصف سلیم بھائی کے لیے میں گزارش کر دوں. انہوں نے جو کہا کہ جی نیشنل میڈیا, نیشنل ٹاک شو,
किस मुल्क के नेशनल टॉक शो की बात करते हैं जहां एंकरों को प्रोग्राम में जाने से पहले शीट पढ़ाई जाती है कि इसके ऊपर आपने बात करनी है। तो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस वक्त नुसरत साहिबा से बात कर रहे हैं और हमने कोई सिंगल चीज, ये मेरे हाथ में मेरी डायरी है, कोई चीज पे नहीं लिखी हुई है सिवाय मेरे अपने जो है ना बुलेट पॉइंट्स, दैट्स इट। एक मिनट मुझे आप मैं बात पूरी कर दूं सलीम भाई। आज ये है कि ये जितने भी एंकरों की टीम होती है जिनको आप नेशनल टीवी के एंकर कहते हैं, ये बेचारे दिहाड़ीदार हैं। ये जो एंकर है ना पाकिस्तानी, ये दिहाड़ीदार हैं। इन्होंने वही कुछ कहना होता है जिसका इनको वो कहा जाता है। फिर इसके ऊपर पेम्ब्रा है, पेम्ब्रा इनका हवालदार है। तो जब हवालदार के पास छड़ी होती है तो फिर एंकर कुछ नहीं कर सकता। ये पेम्ब्रा की भी कारस्तानियां है इसके अंदर। और आजकल मैं आपको ये बताऊं कि आपका जो प्रिंट और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, इसको कहीं और जगह से भी कंट्रोल किया जाता है और उसको कहते हैं ISPR। तो पहले होता ये था जिस दौरान हम एडिटर होते थे अखबारों में, तो उस वक्त इतनी सख्ती नहीं होती थी। तो अब पेपर प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले कई जगहों से उसको अप्रूवल कराना पड़ता है कि सुबह के पर्चे में आ क्या रहा है। ये हो गया आपके प्रिंट का हाल। तो आपके एंकरों की हालत मैंने आपको बता दी। ये जो टीवी के छोटे छोटे ठेले खुले हुए हैं, हर गली में एक चैनल है, तो इसलिए मीडिया आज़ाद नहीं है। तो जब मीडिया आज़ाद नहीं होगा तो वहाँ उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो हुकूमत की तारीफ करने वाले होंगे, और जो हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले जानदार लोग हैं उनको उन टीवियों में ना बुलाया जाता है और ना वो जाते हैं। ठीक है। सो चूंकि हमारे वक्त की कमी है और मैं समझता हूँ कि अगले ट्वीट की तरफ हम जाएंगे। प्रोड्यूसर साहब, अगर आप अगला ट्वीट जो है वो सामने आपका भी लंबा हो गया तो मेरा ख्याल है आप क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहे हैं कि 1 घंटा 17 मिनट और 29 बिल्कुल जी, इसी तरह ही है। और मैं सबसे पहले तो नुसरत अब्बासी साहिबा का, जिन लोगों ने प्रोग्राम को लेट ज्वाइन किया, मैं आखिरी जो है ना वो ये बात करता चलूँ कि दुख्तर पाकिस्तान का खिताब इन्हें क्यों दिया गया, सिर्फ इसलिए कि ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ हैं। सिंध असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली की मेंबर हैं। 2008 में जो है ना ये से उसमें वो आई और इन्होंने आकर जो है वो इंसानी हुकूक की हमेशा जंग लड़ी। इंसानी हुकूक की जो है ना उस जंग की एक जिन लोगों ने प्रोग्राम अभी ज्वाइन किया, वो जब प्रोग्राम हमारा ख़त्म होगा तो शुरू से ज़रूर देखिएगा इनकी फ्लोर पर की गई तकरीर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फिर किसी प्रोग्राम में हम लाएंगे। खुर्शीदुज़्ज़मान साहब किसी तारीफ की मोहताज नहीं, 40 साल सहाफ़त है और हमेशा सच की आवाज़ जो है इन्होंने उछाली है और आज भी उसी आवाज़ को लेकर चल रहे हैं। जिस नेशनल टीवी का ये रेफरेंस देकर उन्होंने बातें की कि ना तो किसी लिफाफे पर यकीन रखते हैं और ना किसी जो है ना किसी और छड़ी के ऊपर जो है ना वो ये यकीन रखते हैं। इंडिपेंडेंट है, इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ हम इंसानी हुकूक की चलाते रहेंगे। और आप तमाम नाजरीन का बेइंतहा शुक्रिया। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नुसरत साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द आपको। थैंक यू सो मच अमान साहब, थैंक यू सो मच तसद्दुक़ भाई, थैंक यू सो मच।